I'm writing down the number. If I missed out any number, let me know that. 11 you said. Okay. 16 you said. 17 you said. Anything else other than this 3? 12 also. Okay. 12. Another? Anybody said anything else? No, na? 12, 12. Yeah, okay, I'm taking 12. 12 also. So let us go serially. 11 first. Okay. What it says? 11. M plus N. P2 is equal to 56. M minus N. P2 is equal to 30. Here, the sum can be solved. But dear student, here your MCQ question. So better go trial and error method. Trial and error method means first take A option, put those values and see, that will be faster. What options they have given? A में 6 and 2. 6 and 2. M 6 and N 2. So what it became now? क्या हो जाएगा? 8P2 हो जाएगा. M is 6 and N is 2. M plus N. M plus N is 6 plus 2 8. 8P2. 8P2 शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? 8P2 शॉर्टकट. 8P2. 8P2. Write it in shortcut. 8 multiplied by 7. 8 multiplied by 7 is 56. So first part is true. Let's check the second one now. M minus N. M minus N. 6 minus 2. A आंसर देख रहा हूं मैं, फिलहाल A आंसर देख रहा हूं. 6 minus 2, that is 4. 4P2. How do you write 4P2? 4P2 shortcut. 4P2 shortcut. 4 into 3. 4 into 3 कितना होता है? 12. कितना बता रहे हैं ये लोग? 30. So option A is not correct. Option A is not correct. चलते हैं ऑप्शन बी पे. 7 and 1. 7 plus 1 is 8. So पहला पार्ट तो ट्रू ही हो जाएगा, 56 आएगा. Getting me what I'm saying? M plus N is 8. अभी तो किया था हम लोग ने. 8P2 56 आया था. चेक करो उसका माइनस करके. 7 minus 1, that is 6. 6P2. 6P2 शॉर्टकट में लिखो. 6P2. 6 multiplied by 5. 6 multiplied by 5 is 30. और वो लोग भी कितना बोल रहे हैं? 30. So दोनों टैली हो रहा है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी. So this is your answer. Answer is B. समझा क्या किया मैंने कि नहीं समझा? You can solve this, but solve करने में बहुत लेंदी हो जाएगा. Can be solved. So इसको क्या करना है? Trial and error method से जाओ wherever possible. समझा कि नहीं समझा क्या किया मैंने? I took first A answer 6 and 2. चेक किया 6 and 2 से 56 टैली होगा, but 30 टैली नहीं हो गया क्योंकि उधर 12 ही आ रहा था. Then I took second answer 7 and 1. 7 and 1 से first answer टैली हो गया, second answer भी टैली हो गया. That means B is the answer. Hello. I call this method as trial and error method. आंसर से जाओ, डालो उधर, चेक करते जाओ. Sometimes you have to use trial and error method. Well, I've solved it also, but solving takes a lot of time. दिमाग लगता है उसमें. Next, so 11 is over now. Any doubt? The one who asked me 11, is it clear? जिसने पूछा था 11, is it clear? Okay. Method का नाम trial and error method or from option. Next 12. 5PR is 60. Then value of R is again here. Dear student, use trial and error method. Put 3 in R. पहला आंसर 3 है ना, तो 5P3 करो शॉर्टकट से. 5P3. 5P3 शॉर्टकट से करो तो 5 into 4 into 3 कितना आंसर आएगा? 5 into 4 20. 20 into 3 60. कितना दिया है? 60 दिया है ना. So A is the answer. A is the answer. A टैली नहीं होता तो B देखता था मैं. A टैली हो गया, खत्म. A is the answer. 12 जिसने पूछा था हो गया क्लियर?
ट्रायल एंड एरर मेथड से किया, दोनों भी किससे किया? ट्रायल एंड एरर मेथड से किया. नेक्स्ट इज नेक्स्ट नंबर 16 you said. Okay, 16. थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया मैंने so that it can come in the center. क्या बोला है क्वेश्चन में? 10 examination paper are arranged in such a way that the best and the worst paper never comes together. Best and worst. Okay, मतलब दो झगड़ा हुआ है इनमें. आज भी केस हम ना वैसे ही है. 10 है, 10 में से दो पेपर में झगड़ा हुआ है, तो उसमें से एक पेपर बाजू में रखो. तो कितने पेपर पहले अरेंज करने के? देयर आर 10 पेपर्स, बट दो पेपर का झगड़ा हुआ है, एक को बाजू में रखो. दो में झगड़ा हुआ है, एक को बाजू में रखो. तो कितने बचे? अरे कितने पेपर बचे अभी? 10 में से दो में झगड़ा हुआ है. बेस्ट एंड वर्स्ट के 9 बचे ना. 9 को अरेंज करना है. सर्कुलर नहीं, इधर सर्कुलर नहीं है. 9 को अरेंज करना है. कैसे करेंगे? दिस इज लीनियर. 9 को अरेंज करना है. कैसे करेंगे? यस, 9 फैक्टोरियल वेज. ओके, अब आते हैं. अभी ये जो 9 पेपर अरेंज किए, लीनियर किए हैं, लीनियर किए आपने, लीनियर किए, तो अभी कितनी जगह अवेलेबल है अपने आगे पीछे मिला के? 9 पेपर्स आर अरेंज. 9 पेपर्स आर अरेंज. लीनियर वाला है, एक ज्यादा होता है. 9 पेपर अरेंज किया तो 10 होंगे. Out of 10 we can't use. Out of 10 we can't use how many places? 10 में से हम लोग कितने यूज नहीं कर सकते? 2. बेस्ट के आगे का, बेस्ट के पीछे का, नहीं तो वर्स्ट पेपर आ जाएगा. तो 2 नहीं कर सकते. तो बचे कितने? Out of 10 we can't use 2. So how many are left? 8. So final answer. फाइनल आंसर. पहला कितना आंसर आया था? 9 फैक्टोरियल. और अभी कितना आया? 8. 9 फैक्टोरियल इंटू 8 या 8 इंटू 9 फैक्टोरियल. देखो आई क्या कोई आंसर? 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, अदरवाइज 9 फैक्टोरियल इंटू 8. ऐसा कोई है आंसर? फैक्टोरियल 9 का एंड मल्टीप्लाइड बाय 8. इज देयर एनी आंसर? कौन सा आंसर है? C. So option is C. Any doubt? डायग्राम निकाल के बताओ. ऐसा कुछ करो कि समझ में आ गया. You want me to explain with diagram? डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन करूं क्या? समझ में आ गया ना? बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग ऐसे. टुगेदर, नॉट टुगेदर, ऐसे सब क्वेश्चन चालू है. हाँ, तो 16 हो गया. 17 नाउ. You said 17 also. So 11 over, 12 over, 16 we solved. हाँ, 16 ट्रायल एरर से नहीं किया. 16 we solved. दिमाग लगाया, सोच लिया क्या होता है. तो 10 पेपर है, 10 में से बेस्ट एंड वर्स्ट. तो एक पेपर बाजू में रख लेने का. दे शुड नॉट कम टुगेदर. तो एक कम करने का, 9 को अरेंज करने का. तो 9 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल 9 को अरेंज किया. दिस इज लीनियर. अगर राउंड होता था तो 9 की जगह पे 8 फैक्टोरियल आता था. सर्कुलर होता तो. और सर्कुलर में अगर 9 पेपर को एडजस्ट किया तो 9 प्लेसेस बनते हैं. बट इसमें n+1 बनते हैं. दैट इज 9 को अरेंज किया तो 10 प्लेसेस बने. बट 10 में से हम लोग 2 यूज नहीं कर सकते. बचे 8. नेक्स्ट 17. N articles are arranged in such a way that 2 particular articles never come together. अरे अरे अरे, यही तो है, ऊपर वाला ही है. खाली अभी n में बात कर रहे हो लोग. वही तो क्वेश्चन है. 10 N articles are arranged in such a way that 2 particular articles never comes together. The number of such arrangement. तो क्या करेंगे? अपने पास n आर्टिकल. ऊपर क्या किया था? 10 थे. पहले कितने को अरेंज किया था? ऊपर 10 थे. तो पहला कितना को अरेंज किया हम लोग ने? ऊपर वाले की बात करो पहले. 9 को. अभी n है अपने पास, तो कितने को अरेंज करेंगे? नाउ वी हैव n. ऊपर 10 था तो 9 को अरेंज किया. नाउ वी आर हैविंग n. तो हाउ मेनी विल अरेंज? 9 minus 1. तो 9 minus 1 इन ब्रैकेट फैक्टोरियल आएगा ना. 9 फैक्टोरियल था.
9 फैक्टोरियल, इधर n माइनस 1 इन ब्रैकेट फैक्टोरियल, हो गया इतना? हेलो, अभी अभी आप n माइनस 1 को अरेंज करेंगे तो कितने प्लेसेस बनेंगे? उधर आपने 9 को अरेंज किया था तो कितने प्लेसेस बने थे? 10। इधर n माइनस 1 को अरेंज किया तो कितना प्लेसेस बनेगा? n माइनस 1 को अरेंज किया तो कितना प्लेसेस बनेगा? I'm not getting any answer still now. I'm waiting. n places, n minus 1 plus 1 ना, n minus 1 plus 1, that is n places बन जाएंगे, but n में से हम लोग कितना नहीं ले सकते अभी? n में से कितना नहीं ले सकते? 2 नहीं ले सकते, तो n minus 2 हो गया, तो फाइनल आंसर क्या बन गया अभी? फाइनल आंसर, फाइनली ब्रैकेट ब्रैकेट डाल के लिखो, पुट ब्रैकेट ऑल्सो, in bracket n minus 1 factorial into, in bracket open, n minus 1 bracket close factorial into n minus 2, n minus 2 भी ब्रैकेट में आएगा ना, n minus 2 in bracket, n minus 1 भी ब्रैकेट में, बट n minus 1 के साथ फैक्टोरियल आएगा। देखो अभी कौन सा आंसर सूट हो रहा है? Which answer is suiting? Factorial of n minus 1 into n minus 2, a, तो a is the correct answer। अभी भी मैं वापस एक बार पूछता हूं, क्या 16 का मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको? तो 16 समझ जाए बराबर तो 17 समझ में आ जाएगा। 16 नंबर में बात किया है, 17 वेरिएबल में बात किया है। बोथ 16 एंड 17 इज सेम, हमारे लिए वो सेम ही है। कल आप बोलेगे 10 एग्जामिनेशन पेपर, सर उधर 20 एग्जामिनेशन पेपर आ गया, तो हमारे लिए सब सेम है, नंबर तो बदलेंगे, कंसेप्ट बराबर समझ लेना। एनी डाउट इन 16 17 नाउ? हो गए 17 तक? चलो प्रोसीड। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ओके, 17 तक हो गया, तो आई स्क्रॉल इट सो दैट 18 गोज एट द टॉप। चलो 18 to 23, anything you require? 18 to 23, you give the number, you give the number। 18 to, ऐसा ऐसा एक एक जरा यार, इधर मेरे को लिखना पड़ता है, आई एम राइटिंग इट ऑन अ पेपर। 19 आ गया, 20 आ गया, 18 आ गया, तो 18 19 20 आगे, 18 19 20 आई रोट। $18, $19, $20, somebody said now $22, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 तो बोल दिए। 23 नहीं चाहिए किसी को? 23 everyone got? $23 भी चाहिए, वेरी गुड। अभी कौन सा बचा, वो भी डालो ना। 18 19 20 21 बचा है, वो भी डाल दो। 21 भी करो।
हाँ सभी हो, सब दे देता हूँ अभी। 21 तो एकदम अपना बहुत बार किया हुआ सम है। चलो 21 भी डाल देता हूँ, एक सब कर लेते हैं। चलो ओके 21 भी दे देता हूँ फ्री में, गिफ्ट गिफ्ट है वो, 5 के साथ एक फ्री है। या पहला किधर से चालू करना है मेरे को? 18 से चालू करना है। ओके क्या बोला है? इफ 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज contest, then number of ways first, second and third position may be won is। कितनी टीम्स है? 12 टीम्स। 18 जिसने पूछा है उसको 12 टीम्स है। कितने प्राइज देने हमको? प्राइज कितने देने हैं? फ्री। तो क्या बन गया? 12p3। सॉल्व 12p3। 12p3 को सॉल्व करो, शॉर्टकट से करो। यूज कैलकुलेटर एंड डू इट, शॉर्टकट। 12p3 12 into 11 into 10 कितना आता है? That's the answer B। कितना आंसर आ गया? 1320। 1320 इज बी ना? यस बी, नो डाउट। जिसने पूछा था 18, समझा? एकदम मामूली सा सम था। 12 स्कूल 3 prizes, 12p3। नेक्स्ट, sum of all 4 digits number containing the digits 2 4 6 8 without repetition। क्या है? 4 digits number। ये कुछ किया था अपन ने, याद है क्या? बहुत मगजमारी हुई थी इसमें सम करने में। ओके एनीवे आई विल डू इट, आई टेक यू टू वर्ड एंड रिमेंबर द डिजिट्स। इवन डिजिट्स आर देयर 2 4 6 8। वर्ड में लेके जा रहा हूं तो ये जाएगा स्क्रीन से, तो 2 4 6 8 एंड 4 डिजिट नंबर। ओके 4 डिजिट नंबर 2 4 6 8 आर द डिजिट्स। इधर नीचे लिख देता हूं 4 digit number, digits are 2, 4, 6, 8। Okay. First, tell me how many 4 digits number you can make from this 4 digits without repetition. How many 4 digits number you can make? फोर डिजिट में से 4 digits and 4 digit number। 4 factorial which is equal to 24। यहां तक एग्री? ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? फिर आपको कुछ करने को सिखाया था, याद होगा तो 24 को इक्वली 4 में डिवाइड करना है। डिवाइड 24 इक्वल इनटू 4। यस 24 डिवाइडेड बाय 4 अभी आ गया। 25 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 6। हेलो 6 समझा क्या? 6 digit will have 2 at the unit place। 6 digits, 6 numbers will have 4 at unit place। 6 of them will have 6 at unit place and 8 of them will have, sorry 6 of them will have 8। yes correct। so 6 है। फर्दर क्या करना हमको? हमारा आंसर 6 आ गया। 6 in bracket are digits। what are our digits? 2 plus क्या क्या डिजिट्स है अपने? 2 plus
4 plus 6 plus 8 is equal to, find out the answer of this. 6 पहले एडिशन करना पड़ेगा. 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 plus 8 20, 20 into 6 कितना हो गया? 120 हो गया. फिर आगे कुछ करना होता है 120 एंड देन वो प्लेसेस की जगह लिखनी होती है. यूनिट प्लेस, या somebody said that correctly. यूनिट प्लेस का 1, 10 प्लेस का 10, 100 प्लेस का 100, 1000 प्लेस का 1000. तो 120 in bracket if you add them कितना हो जाएगा वो? 1000, 100, 1111. राइट, टोटल बराबर है क्या? मल्टीप्लाइड बाय 120. 120 multiplied by, use calculator and tell me. Let me use calculator. 120 multiplied by 1111. 120 multiplied by 1, 2, 3, 4 times 1 is equal to 1,33,320. 1,33,320. जैसे किया था अपन ने, आना चाहिए था आप लोगों को. कोई ऐसा है कि जिनको आया था ये आंसर, कर पाए थे? Is there anyone who could do this? Somebody asked me doubt. कोई है कि मिला था आंसर? Yes, Om said yes, I got the answer. Okay, good, good, good. This is the answer. Okay. Next, कौन सा नंबर था ये? कौन सा हो गया? Okay. If anything is pending, we'll do it tomorrow. Okay. Don't worry. 19 over. Now 20 पे चलते. 20. क्या बोला है? The number of 4-digit numbers greater than 5,000 can be formed out of digits 3, 4, 5, 6, and 7. No digit repeated. The number of such is. क्या चाहिए हमको? 4-digit number चाहिए, which is greater than 5,000. What are our digits? 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Let's go back here. कितना डिजिट का नंबर था? 4-digit नंबर ना? I'm right. 4-digit number. Sorry. 4-digit number greater than 5,000 करना अपन को. Greater than 5,000 and digits given digits. Given digits. I'll go and check again. One second. Given digits are 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 3, 4, 5, 6, 7. Now 4-digit number, dear student. 4-digit number. अपना vacant spaces हो जाते हैं. एक boxes नहीं बनाता, इधर boxes बनाने को difficult हो जाएगा. 3 and 4. 4-digit. अभी इधर we want a number greater than 5,000. So the first digit, first number में can I take what options I have here? Can I take 3? 3 लिया तो नंबर 5,000 के ऊपर नहीं जाएगा. 4 लिया तो भी नहीं जाएगा. कितने ऑप्शंस है मेरे पास? At the very first place, total digits given to me are 3, 4, 5, 6, 7, but I can't use all of them. Yes, 3 options are there. So let me write here 3. ये 3 लिख दिया मैंने. Okay, first place पे 3 आएगा. Is that clear? क्या क्या आ सकता है इधर? 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है. 3 options. Digit repetition allowed नहीं है. Repetition is not allowed. Next now. Next, total 5 digits. So how many? 4. समझ रहा है? 4. क्यों 4? एक 5 में से एक यूज किया आपने ना, तो अपने पास 4 ही बचे. आगे कितने बचे आपने? 5 में से 2 यूज किए, बचे कितने? 3.
और बाद में 2 मल्टीप्लाई दिस, इनके बीच में मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना आंसर आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन कर क्या? मैंने अगर इंटू साइन डालो क्या? डाल देता। चलो इंटू, तो बोलेंगे इंटू नहीं डाला था सर ने, इंटू इंटू is equal to, what is the answer? 72. Okay, let's check. Sorry, 72 कौन सा आंसर था? 20 में ए, ये ऑप्शन ना। ओके, सो रिमेनिंग 20, 21, 21 भी करूंगा, डरो मत, 21 भी करूंगा, 22, 23, आई थिंक दैट्स ऑल विद दिस। 3 कल आके करेंगे। टुमारो विल स्टार्ट विद दिस सम्स, देन विल गो टू 5B। और आप 5C कर रहे हैं आपने बोला, तो 5C भी करेंगे। नहीं, 5C कॉम्बिनेशन आएगा 5C में शायद। डोंट डू 5C, सॉरी, यस करेक्ट, डोंट डू 5C, वेट, कॉम्बिनेशन किया नहीं मैंने, ओनली 5B, टुमारो 5B विल डू कॉम्बिनेशन एंड देन देयर आफ्टर, सॉरी 5C याद नहीं रहा मेरे को, कॉम्बिनेशन अपन ने किया ही नहीं, चालू ही नहीं किया कॉम्बिनेशन, 5C में कॉम्बिनेशन लगेगा। सो ओनली जिन लोगों ने नहीं अभी भी किया है, डू 5B। ओके, 5A में से 3 बाकी है, कल करेंगे 21, 22, 23, दैट्स ऑल, बाय, थैंक यू।